Hi, everyone, and welcome, a very warm welcome to the Green Diaries. The Green Diaries are special episodes specifically for Ram Ratan Group. राम रतन ग्रुप क्या है, कौन लोग हैं इनके पीछे, ये कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश्ड है, ये सब हम चीजें थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट हु इज स्टार्टिंग द सीरीज एज एपिसोड फॉर एपिसोड 1. Before that, I would just request my production team to start this beautiful day with the trending live video. ट्रेंडिंग लाइव विद रुचा मेहता वो स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड इसका सबसे बड़ा सहयोग था राम रतन ग्रुप. People who are associated with me knows it particularly, the kind of bonding this group has and the way it has been establishing year after year. It's been 37 years this group is growing strong, and there are a lot of cities which they have already covered. They deal into farmhouses and townships. मैं और क्या तारीफ करूं, मैं चाहूंगी मेरी प्रोडक्शन टीम उनकी एक छोटी सी कॉर्पोरेट वीडियो प्ले करे जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ग्रुप बेटर. Imagine investing in real estate and removing any gamble from it. 33 years ago, we told our investors to have faith in us and invest into farmland in the distant village on the far edge of South Delhi. At the Ram Ratan Group, we thank our initial investors for listening to our advice. Today, those dust-laden villages are a part of prime South Delhi real estate. These are the farmhouses of Chhatarpur. For 33 years, the Ram Ratan Group has worked to help you find the next big thing before it starts. Land investments typically in India come with a lot of issues. Anybody who's looking at investing with Ram Ratan Group, they have a solid partner. The paper work is absolutely nailed out. That got me convinced to invest in Ram Ratan Group. In a little over 3 decades, we at the Ram Ratan Group have helped 2,000 families find a safe home for their investments. Those that invested with us in the 80s still choose us for their strategic land investments. When I met Vijay, a lot of my apprehensions dissolved. I found him to be scrupulously honest, and I found him to adhere to his words completely. Some of our most successful projects in Delhi, Gurgaon and Sona Road have given high returns to our investors. New opportunities are still available at these sites, and we are helping our investors find the next strategic and safe investments. The who's who of Delhi have already started investing in our Rose Valley Farms project, a few minutes away from the Golf Course Road in Gurgaon, and minutes away from Chhatarpur. Even while the area is being developed by us, the homes being made here showcase the best of farmhouse living.
इन द फ्यूचर मेरे को लगता है उससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरी नहीं होगी लाइफ में। तो मेरे को अपना यानी कि मेरे को ये अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट लगता है जो मैं अपना बना रहा हूँ वहाँ पे फार्म हाउस 2 एकड़ में। Another of the investments takes you into future growth areas. Fueled by India's infrastructure growth and located on the sidelines of the world's largest investment project, the upcoming Delhi-Mumbai Industrial Corridor. As a part of Greenwood Acres, a gated, freehold farmhouse community gives you investment options starting from an acre as a part of a 1,000-acre development. Close by is our project Leaf Song, brought to you by the Dua Ram Ratan Group. Leaf Song is surrounded by the Aravalis and located in the center of DMIC. The most important thing in today's era is they provide end-to-end service. I interacted with Vijay quite often. I never seen such a human being in a real estate industry. Green Wind Farms on Sona Road, spread over 100 acres, is an interesting residential investment opportunity by the Dua Ram Ratan Group. This South Gurgaon property gives you the option of investing in mini farmhouses to 1-acre farmhouses. From 2005 to 2012, there had been the surge in the market, despite the fact that there had been economy downtrend, but we hardly find any impact on these investments. I think they are extremely proactive, they are extremely responsive. Whenever a query is raised, they are very prompt in even listening to any kind of suggestions which we may have. For any land-related investments into real estate, you can find the perfect partner with the Ram Ratan Group. Over 2,000 families have already partnered with us in finding a secure home for their investments. जैसे बोला जाता है, फाउंडेशन ऑफ एनीथिंग हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड इससे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मैंने नहीं जानी है पिछले 2 साल के इस फैशन इंडस्ट्री के करियर में। एंड जो बैकबोन बोला जाता है, वो बैकबोन राम रतन ग्रुप की है विजय चौधरी। बहुत लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स में विजय जी के बारे में बोला है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट my production team, and it's indeed a great honor and privilege to have him with us. Can we please have Mr. Vijay Chaudhary? कैसे ऋचा जी? I'm doing good, thank you. आप कैसे हैं विजय जी? मालिक का आशीर्वाद है। विजय जी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, दो मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं, बट सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ the two coins, जैसे बोला जाता है कॉइन्स के दो मोड होते हैं, so sitting on this side, I would like to know lot of things, and a few fans and followers who have joined us from 8 different platforms would like to know more about the group. So मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, when was this Ram Ratan Group established? देखिए, राम रतन ग्रुप established in 1984। राम रतन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे फादर साहब का नाम है, उन्हीं के नाम से कंपनी शुरू हुई थी। इसको पहले जाना जाता था राम रतन कंपनी के नाम से। फिर हम लोग जब आए तो इसको हमने राम रतन ग्रुप के नाते बनाया। तो 1984 में जब सारी तरफ इंडस्ट्री में बदलाव था, 80s का दौर था, 90s की तरफ मूवमेंट जारी थी, तो लोगों के अंदर देखो फार्म हाउस क्या है कि पहले ये कृषि भूमि थी, उसके बाद ये फार्म हाउस आया, उसके बाद सेकंड होम आया, उसके बाद कंट्री साइड होम्स आए, तो नाम बदलते रहे, सारा कुछ वही रहा है। तो 84 में हम लोगों ने शुरू किया, फादर साहब ने असौला बनाया, डेरा मांडवी बनाया, काफी उनके पार्टनर साथ थे, और सबके सहयोग से ये 1984 से लेकर अब तक यहाँ पहुंचा है। ओके, तो सिर्फ फार्म हाउसेस ही क्यों स्टार्टिंग से? एक्चुअली क्या है कि फार्म हाउसेस एक ऐसा लग्जरी प्रोडक्ट रहा है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इसके अंदर, एक ऐसा कंफर्ट है, एक ऐसा ब्रांड है ये कि जिसको सुनते ही आदमी के अंदर ना एक बदलाव सा आ जाता है। फार्म हाउस, फार्म थॉट, क्योंकि हम लोग पुराने, हम भारतीय हैं, भारतीय कृषि की तरफ रहा है, तो जैसे कृषि भूमि का ये बेटर वर्जन था। तो जब दिल्ली के अंदर बिजनेस मूवमेंट है, ये कलकत्ता से, पंजाब से लोगों का आना शुरू हुआ, काबुल से लोग आए, तो उन्होंने एक सेकंड होम की तरफ जाना शुरू किया। तो छतरपुर क्योंकि पुराना मंदिर था,
तो उसके आसपास के गाँव को लोग रहने के लिए सेकंड होम के लिए चुनने लगे। तो लोगों को एक उम्मीद थी कि एक ऐसी कम्युनिटी बने, एक ऐसा विचार लोगों के मन में आया कि जहाँ पे लोग रह सकें, एन्जॉय कर सकें, बेटर लाइफ जी सकें। ये 90s का दौर था और 90s के दौर में आदमी फार्म हाउसेस को, फार्म लाइफ को बहुत बिलीव करता था। एक उम्मीद करता था कि भई इस तरह की कम्युनिटी हो जहाँ के आप वीकेंड पे जाके फैमिली को ले जाएँ, अच्छा खाना खाएँ, अच्छा आप वहाँ पे रहन-सहन करें। तो इसलिए रामरतन ग्रुप का शुरू से ही फोकस रहा है कि इस लग्ज़री प्रोडक्ट को, बिकॉज़ रामरत्न ग्रुप वेयर लाइफ इज़ लग्ज़री। व्हाट लग्ज़री दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी भी है, एनवायरमेंटल आपको बेनिफिट्स भी हैं, एक अच्छा रहन-सहन भी है और खुलापन जो भारतीयों की पहचान रही है। हमारे पुराने मकान देखिए, कभी आप देखिए जो मकान होते थे, चाहे उसमें कितने भी लोग रहते थे, वो काफ़ी खुले थे, काफ़ी अच्छे बने होते थे। तो उसको जब दिल्ली हमारी बढ़ने लगी और दिल्ली के अंदर आबादी बढ़ने लगी, तो लोग फार्म हाउस की तरफ जाने लगे। तो इसलिए हमने अपना आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ फोकस फार्म हाउसेस पे रखा है और आज मालिक का आशीर्वाद है, पिछले 40 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और मैं तो ये कहूँगा कि सोसाइटी ने, इंडस्ट्री ने बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल किया है और मुझे याद है जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, मुझे लोगों ने बोला था कि तुम्हें रामरतन ग्रुप के बारे में पता है? नो, बीइंग वेरी इनोसेंट फ्रॉम माय साइड, मैंने कहा था सुना तो है, लेकिन इनको चौधरी रन करते हैं। People said and everybody had the same opinion that backbone of Ramaratan Group, strong pillar, foundation जिसको कहते हैं वो है विजय चौधरी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी एज चेयरमैन ऑफ रामरतन ग्रुप क्या रही और कैसे रही? देखिए, एक तो मैं आपको और सबको क्लियर कर दूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बैकबोन हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा। हमारे फ़ादर साहब के साथ भी काफ़ी लोग रहे। उनके बाद जब उन्होंने, हमारी फैमिली ने, बड़े भाई साहब ने और हमारे पार्टनरों ने हमें आगे बढ़ाया, तो हमने कोशिश की कि मैंने पर्सनली कोशिश की कि उनकी उम्मीद को पूरा किया जाए और उन्होंने जो विश्वास मेरे में दिखाया है, रामरतन ग्रुप के अंदर दिखाया है, तो हम इसको आगे बढ़ाएँ। क्योंकि हमारे परिवार के पार्टनर्स की एक बहुत ही सीधी इसमें एक परिभाषा थी कि भई जो हमारे सीनियर्स ने, हमारे फादर्स ने, फोरफादर्स ने मेहनत करी, रामरतन नाम बनाया, उसको किसी तरह इंडस्ट्री के अंदर एस्टेब्लिश करें। इसके अंदर बहुत लोगों का सहयोग है। रामरतन एक नाम नहीं है, रामरतन एक परिभाषा है। रामरतन को लोग ये मानते हैं, ये जानते हैं कि अगर इन्होंने कहा है तो जाने-अनजाने की तो गलती हो सकती है, जान के गलती नहीं हो सकती। तो हमारे साथ हमारे पार्टनर रहे, महाशय परिवार रहा, हमारे मिस्टर बंसल रहे, काफ़ी ऐसे सहयोगी हैं, दिल्ली से लेके, बाहर से लेके काफ़ी लोगों ने, काफ़ी संपन्न लोगों ने हमको साथ दिया और इस ग्रुप को क्रिएट किया। हाँ, ठीक है, सौभाग्य है कि रामरतन ग्रुप को चलाने का, उसका डिसीजन लेने का सौभाग्य मेरे को मिला, पर इसकी जवाबदेही काफ़ी ज़्यादा है। ऋचा जी, आप ये मान के चलिए कि इस जवाबदेही को निभाना, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं रामरतन ग्रुप का वारिस हूँ, ये अच्छी बात है, बट रामरतन ग्रुप को एक अच्छा मेरे को रामरतन ग्रुप की विरासत मिली, अच्छी बात है, बट रामरतन ग्रुप को एक अच्छा वारिस बन पाऊँ, ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। पर और मैं आज भी पिछले 25 साल से व्यापार कर रहा हूँ और 25 साल से यही कोशिश है कि किसी भी दौर में, किसी भी परिस्थिति में ये नाम खराब ना हो और हम लोग जो कस्टमर हमारा है, जिसको हम भारतीय कस्टमर को भगवान मानते हैं, उसको ऐसी सर्विस दे, ऐसी प्लानिंग दे, ऐसी थॉट दे कि वो अच्छा कंफर्टेबल फील करे। वाय रामरतन में एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब क्योंकि बदलाव की तरफ आया, 2010 के बाद हमने अपने आप को बदला। तो वाय रामरतन भी ये कहूँगा कि भई अब हम लोगों ने नॉट ओनली, हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल्स नहीं कर रहे। वी आर नॉट ओनली सेलिंग आवर प्रोडक्ट, बट हम आफ्टर सेल सर्विस में ज़्यादा फोकस है। डॉक्यूमेंट्स की बात हो, प्लानिंग की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, आपके विजन को ग्राउंड पे लाने की बात हो, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रामरतन ग्रुप ने उठाई, वो टाइम से डिलीवरी हो, इन्वेस्टर को उसकी बात का जवाब मिले, ये मेरी एक नैतिक जवाबदेही है एज अ चेयरमैन ऑफ द रामरतन ग्रुप। तो बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और आज उसको सीख के, सोच के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। कितने साफ और अच्छे शब्दों में आप आंसर देते हैं। ये तो आपकी यूएसपी तो रही ही है जब से मैंने आपको जाना है। मुझे आप एक बताएं कि फार्म हाउसेस, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, ये जो फार्म हाउसेस हैं वो कहाँ-कहाँ लोकेटेड हैं? एंड जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हम कहाँ हम देख सकते हैं? देखिए, फार्म हाउसेस क्या है कि कहीं भी जमीन लेके फार्म हाउस बनाना एक प्रक्रिया रही है। बट मेरा अपना मानना है, मैंने वर्ल्ड वाइड लोगों को देखा है, फार्म हाउस वहाँ बनाने चाहिए जहाँ पे आपको एक कम्युनिटी भी मिले, जहाँ पे जो बेसिक है, लाइक हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, आपका घर का दायरा हो, या तो वो इतना हो कि एक जर्नी हो 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, या इतना हो कि विदिन 45 टू 60 मिनट्स आप अपने घर वापसी आ जाए।
तो उसके लिए बहुत ही चूजी लोकेशंस में होना पड़ता है। हालाँकि मैं फिर कहूँगा कि फार्म हाउस आदमी कहीं भी बना लेता है, किसी भी पॉइंट पे बना लेता है, बट हम लोग आफ्टर छतरपुर, हम लोगों ने गुड़गाँव में कम्युनिटी बनाई है, सूरजकुंड बनाया है, सोना रोड पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और कुछ कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के लिए, जिनकी न्यू जनरेशन का मन था कि भई हम लोगों ने कभी फार्म हाउस नहीं खरीदा, हम लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उनके लिए हमने दिल्ली जयपुर हाईवे पे कम्युनिटी बनाई। तो हम लोगों ने बजट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहले फार्म हाउसेस को माना जाता था कि लग्ज़री आउट ऑफ रीच, अब समय बदला, समय के साथ परिस्थितियाँ बदली, तो हमने उन परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रोडक्ट में बदलाव किया और हर बजट का ऑप्शन अपने कस्टमर को दिया। और एनसीआर के अंदर सिर्फ दिल्ली सराउंडिंग्स हम कहेंगे, गुड़गांव कहेंगे या फिर सोना कहेंगे या ऑन पार्ट ऑफ मानेसर नीमराना कहेंगे, ये एरियाज को हमने चूज किया क्योंकि ये वो एरियाज है जहाँ पे आपका आना जाना, उठना बैठना, पानी की अवेलेबिलिटी है, काफी कुछ चीजों को देखा जाता है। सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम लोगों को ये बड़ा फोकस करना पड़ता है लोकेशंस के लिए। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और बोली जाती है, शायद ये मिथ है कि इन्वेस्ट करना क्या सेफ है, क्योंकि हम बात करते हैं कि फार्म हाउस एक लग्जरी प्रोडक्ट है, तो आपको लगता है, मतलब इट्स लाइक हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, व्हाट डू यू थिंक कि फार्म हाउसेस में इन्वेस्ट करना क्या सेफ है? देखिए, सेफ की डेफिनेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि टाइम आ गया है, मैं आज की बात करूं कि रियल एस्टेट को, आप एक बात देखिए, सब मैच्योर है, ये पहला बिजनेस पॉइंट है जहां पे रियल लगा है। सो इन द स्टार्टिंग इट्स रियल एस्टेट, तो इसका मतलब सच्चाई यहां से शुरू होती है, ये रियल लाइफ है। तो मेरा एक फोकस रहा है, जो आपका सवाल रहा है, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, तो वहां पे हम लोगों ने कोशिश की कि रियल एस्टेट को रियल बिजनेस की तरह रन किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है, थोड़ा सा बदलाव किया, जो लोगों के सवाल थे, जो लोगों के विचार थे, मोस्टली जगह हमने ये देखा है ऋचा जी कि लोगों को कम्युनिकेशन गैप रहा है, लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, उन्होंने वाया चैनल सुना, किसी से पढ़ा, बट वो कभी उसकी ना बैकग्राउंड में नहीं गई कि उसका रीजन क्या रहा है। देखिए, हम सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी फॉर फंड्स एंड वैल्यू फॉर मनी हमारी प्रायोरिटी है किसी भी तरह के कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए। इट्स नॉट इन रियल एस्टेट, इट्स इन एनी बिजनेस, बट रियल एस्टेट और फार्म ये एक ऐसा लग्जरी नाम है जो सिर्फ मनी से नहीं आता, विचार से भी आता है। हम बात करते हैं 90s की, 90s के दौर में जितने भी लोग बने, जितने भी लोगों ने इस तरह की फील्ड में पैसा लगाया, नाउ दे आर सुपीरियर। फोर फादर्स उन्होंने पैसे लगाए, उनके बच्चे आज रन कर रहे हैं। जितने लोगों ने डिफरेंट फील्ड में पैसा लगाया, मैं कभी किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करता, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि सेफ्टी, यहाँ सेफ्टी को जिम्मेवारी हमें लेनी है। अदरवाइज आप बिलीव करिए कि लैंड आपके नाम पे, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे, फिजिकल पोजीशन आपके नाम पे, कोई ड्रीम नहीं है यहाँ, ड्रीम नहीं है यहाँ, सिर्फ डिलीवरी है, एंड डिलीवरी इज अ मदर फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो मैं ये मानता हूं कि सेफ्टी जो वर्ड आपने यूज किया, इसकी थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि इसके रीजंस क्या रहे कि ये यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि 85 to 90% लोगों को ये नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है। आई थिंक बहुत ही चुन शब्दों में आपने इसको डिस्क्राइब करा है और बिल्कुल सही डिस्क्राइब करा है। मैं चाहूंगी जो आज हमने नई एक टर्म लग्जरी नेसेसिटी, वी टॉक अबाउट लग्जरी और वी टॉक अबाउट नेसेसिटी, बट आज से हमने नई टर्म सीखी है, लग्जरी नेसेसिटी। मैं चाहूंगी मेरी प्रोडक्शन टीम, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है जो राम रतन ग्रुप की है, जो which says that it's been 37 years of Ram Ratan Group. I would request my production team to please play it. Congratulations on completing 37 years, Vijay ji. It's been a long time and अपना नाम बरकरार रखना, अपने पेरेंट्स का नाम अच्छे से, when we say that, you know, everybody says that we have to make our parents proud, and आपने उसको, आपकी पूरी टीम ने, आपके जितने भी लोग हैं जो जुड़े हैं, उन्होंने 37 years तक इतना अच्छा किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस बात की। देखिए, आपका बहुत धन्यवाद, पर मैं फिर कहूंगा कि इस मुबारक बात का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ, काफी लोग हैं। दूसरा, देखिए, आज हमारे पास साधन है, मैं हर फैमिली से कहता हूँ, आज हमारे पास साधन है, सहयोग है, एफर्ट्स करने के लिए इजी इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
हमारे फादर्स या फोर फादर्स ने, मैं सबकी बात करूंगा इंक्लूडिंग योर एंड एनीबडी, कितनी मेहनत करके ये सपना देखा होगा। तो आज अगर हमें मौका मिल रहा है कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का, कुछ अपने बिजनेस को बेटर करने का, तो मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा अपने सब भाइयों से कि इस मौके को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। Real estate is a real industry, and real industry is a real fact of the life. And third, the biggest thing, what we are providing, what we are doing, when it's come to the ROI also, when it's come to the worldwide ROI, I went to Dubai, काफी कंट्रीज में गया, काफी जगह मैंने चीजों को देखा। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में पैसा बढ़ता कैसे है। देखिए, जमीनों में एक और खासियत है। जमीन के बारे में कुछ हिंदी के शब्द हैं पुराने, जिसको आज की हमारी पीढ़ी नहीं समझ पाई कि जमीन खुद बोलती है। जमीन के अंदर से एक फीलिंग आती है कि यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल पॉइंट्स है, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। तो अब एक बात मैं आपको बड़ी खुशी से बताना चाहूंगा कि पिछले 3 साल में रीचा जी, जो हमारी नई जनरेशन है विद द एज ऑफ 25 to 50, ये जनरेशन दोबारा वो 90s की तरफ जा रही है। अब उन्होंने अपने सेफ्टी पॉइंट को, अपनी फैमिली सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, अपने चिल्ड्रंस को ध्यान में रखते हुए अब इस तरह के फार्म हाउसेस या लैंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। एंड नॉट ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट, फॉर द बेटर फ्यूचर, अपने पेरेंट्स के लिए भी आज उन्होंने एक सेकंड होम बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली की जो स्थिति आज है, हम इसको छुपा नहीं सकते, जो सामने है उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। हालात नाजुक है, परिस्थितियां डिफरेंट है, खाना पीना सब चीज बदला हुआ है, तो बीमारी बढ़ गई है। कुछ चीजें भगवान की देन है, हर चीज भगवान की देन बताई जाती है, बट कुछ चीजों को कहा जाता है ये भगवान की देन है, पर कुछ चीजें हमने प्रकृति से हटके की है। तो दोबारा हमें बैक टू नेचर जाना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अपने सब सहयोगियों से, साथियों से, आइए दोबारा नेचर की तरफ चलते हैं, ऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं, अपने इतिहास की तरफ चलते हैं। इतिहास में ज्यादा जाना ठीक नहीं होता, पर अपने कुछ उन चुनिंदा चीजों को करना जिससे हमारा इन्वायरमेंट, जिससे हमारी आबो हवा, जिससे हमारे एटलीस्ट पेरेंट्स और हमारे बेटर फ्यूचर, जिसके लिए हम ये भाग दौड़ कर रहे हैं, हमारे चिल्ड्रंस, अगर हम उनके लिए अच्छी चीजें नहीं दे पाए, तो मेरा मानना है कि शायद हम एज अ सोसाइटी भी गलत कर रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन भी गलत कर रहे हैं। मैं किसी के लिए पर्सनल पॉइंट कभी नहीं उठाता, ना मैं किसी की नेगेटिव बात करता लाइफ में, बट मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सोचने समझने का समय है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है या बेटर लाइफ भी है। मैं एक वर्ड आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, रामरतन ग्रुप वेयर लाइफ इज लग्जरी इज अ वन पॉइंट, बट वी हेल्प द पीपल टू लिव मोर by providing them the good locations, the good ideas. And now we started with after sales services where you dream, you say, you think, you decide, we provide you every kind of services, because after sales service is the only one thing which make any company a superb company. Absolutely. And for the viewers who have joined right now, this is episode 1 of a beautiful series, The Green Diaries by Ramaratan Group, with me, Richa Mehta. So Vijay ji, I have another question. कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, मैंने नहीं कहा, कि HNIs की हम बात करते हैं, सिर्फ वो ही फार्म हाउसेस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि फार्म हाउसेस बीइंग द लग्जरी प्रोडक्ट, जो कि आपने भी माना है, जो मैं भी मानती हूँ, जो सारे व्यूअर्स जानते हैं। कॉमन मैन, When I said common man, मतलब हम जैसे लोग, जो हमारे लोग हैं, वो क्या फार्म हाउसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या फार्म हाउसेस कॉमन मैन तक भी पहुंच सकता है, जिसकी वो ड्रीम भी करते हैं? देखिए, पहला बात तो मैं आपको डिफाइन करूं कॉमन मैन की डेफिनेशन क्या है। हम भारतीय हर पल में, हर परिस्थिति में, हर घर में, हर जगह खुश रहने के लिए फेमस हैं। तो हम तो कॉमन है नहीं, हम तो कॉमन से बाहर है सारे लोग भारतीय। दूसरी बात है कि देखिए, बिल्कुल हमने इस बात का कोशिश की, लोकेशंस को, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जमीनें घट रही हैं, लोकेशंस में थोड़ा रेट का फर्क तो आ ही जाता है समय के साथ, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जिसने आज इन्वेस्टमेंट किया उसको बेटर वैल्यू जब मिलेगी, जब उसको एग्जिट मिलेगी तो बेटर वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने धीरे धीरे आउटस्कर्ट्स की तरफ जाना शुरू कर दिया। आज हमारे पास एक, जिसको आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, एक आम से आम आदमी के लिए भी उसको सपना पूरा करने के लिए, देखिए मैं दुबई गया, एक जनाब थे, द एज इज 28, वो इंदौर से थे। उन्होंने कहा, चौधरी साहब हमने IT सेक्टर में पैसा लगाया और हमें लॉस हुआ। मैं कहा लॉस तो कहीं भी हो सकता है,
मुझे भी लॉस हुआ, किसी और को भी लॉस होता है, रियल एस्टेट में भी कहीं भी लॉस हो सकता है। मैं कहा ये कोई पैमाना नहीं है। अगर व्यापारी है तो लॉस उसके लिए पहले दिन है, क्योंकि व्यापार में हिंदी का शब्द है व्यापार घाटा नफा, पहले घाटा फिर नफा। तो मैं कहा जी क्यों घबरा रहे हो? उसने कहा नहीं हमको इस तरह से, मैं इसको बड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आई सो एंड सो। अब मेरे 2 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ विजय जी उनके लिए 5-7 7 साल के लिए एफडी वगैरह ना करके जमीन में पैसा लगा देना चाहता हूँ। मैं कहा देखिए भारतीय की सर्कल है 3 से 5 साल, अगर 3 से 5 साल अपकमिंग शहर में आपने या एरियाज में कहीं भी पैसा लगाया तो वो डबल हो सकता है, नो डाउटेड अबाउट इट। तो मैंने कहा ये सोच कैसे आई? तो जो वाक्य उन्होंने बताया मेन वो है सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी कहा करते थे, क्योंकि मारवाड़ीज और हमारे काबलीज और सरदार भाई जितने भी पंजाबी भाई आए, इन सब ने इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया। वो कहा करते थे कि भाई कुछ भी इनकम करो, घर शहर में लो, इंडस्ट्रीज वहां पे लगाओ जहां पे उसकी नीड है, पर अपने लिए एक फार्म लैंड या फार्म हाउस या कंट्री साइड होम या लैंड इन्वेस्टमेंट करके रखना। और उसको हो सकता है वो वक्त उसके लिए आपको अच्छा बायर ना मिले, बट एक दिन आप अच्छे सेलर जरूर बनेंगे। तो मैं उसकी बात सुना, कुछ उस प्रॉपर्टी को उसने दादाजी की प्रॉपर्टी को बेचा, अपने फादर साहब को बेल आउट किया। तो देखिए आम से आम आदमी भी समझने लगा है कि आज अगर आपको एक 5 से 10%, 10 से 25% रिटर्न्स में जाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट है। और रियल एस्टेट के अंदर भी नाउ अब टाइम आ गया रियल एस्टेट को डिफाइन करने का। पहले 90s की रियल एस्टेट थी, जब आपने फार्म ले लिया, लैंड ले लिया, एक घर बना लिया। अब तो बहुत ऑप्शन आ गए। अब ऑप्शन आए तो इसी तरह से नई जनरेशन आई है, नई जनरेशन अपने हिसाब से इसको चला रही है। आज मैं 40s में हूँ, 3 जनरेशन को मुझे मैं 40 माइनस और 50 प्लस को मैनेज कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को अपर लेवल पे लेके जाके डिफाइन करना पड़ेगा। और ये जो आम आदमी से बात शुरू हुई है, इस आम आदमी से लेके उस खास आदमी तक कहीं ना कहीं इस रियल इंडस्ट्री को, इस फार्म लैंड को, फार्म्स के सपने को पूरा करने के लिए रामरतन ग्रुप कमिटेड है और हर हालत में पूरा करेगा, डिलीवरी करेगा। शगुन सेतिया ने क्वेश्चन पूछा, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? रियल एस्टेट हर वक्त राइट है अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपको सही लोकेशन पता है, अगर आपको ये पता है कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक है और आपने जो पैसा लगाया है उसमें आपकी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें 6 महीने 8 महीने में आपको निकलना हो, तो रियल एस्टेट के लिए बिल्कुल अच्छा टाइम है। क्योंकि काफी इंडस्ट्रीज नेगेटिव जा रही हैं फॉर सो मेनी रीजंस, काफी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज नेगेटिव जा रही हैं फॉर सो मेनी रीजंस, काफी अदर चीजें हो रही है। तो आदमी आज तो बैंक की सिस्टम में भी क्वेश्चन उठने लगे हैं, जो कि सबसे सेफेस्ट माना जाता था, बैंक भी बंद हो रहे हैं, तो आदमी आज वापसी आ रहा है। देयर इज ऑलवेज सेइंग, वर्तमान को कभी कभी इतिहास की तरफ जाना पड़ता है बेटर फ्यूचर के लिए। तो आज आदमी वापसी लैंड फार्म हाउसेस में पैसा लगा रहा है और धीरे धीरे वो पैसा लगा रहे हैं जिन्होंने कभी नहीं लगाया। एब्सोल्युटली, जैसे विजय जी ने ये डिस्क्राइब किया कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जब हम बात करते हैं वो म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ या हम जितने बैंकिंग ऑप्शंस हम उसमें जाते हैं। क्या यूथ का नेचर, क्या यूथ की डायरेक्शन चेंज हो रही है फ्रॉम द बैंकिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस टू लैंड? I know it particularly because I've been associated with this group for 1.5 years, 2 years, and I've seen the youth who have been connecting with the group is tremendous. The kind of response which youth is giving, क्योंकि शायद जो ये कह रहे हैं, शायद जो विजय जी ने कहा है that फार्म हाउसेस देन एंड नाउ में बहुत डिफरेंस आ गया है। अब यूथ भी समझ रहा है कि शायद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लैंड में ज्यादा बेनिफिशियल है। मुझे आपसे ये जानना है आप ही के शब्दों में, फार्म हाउसेस जब आपने 37 इयर्स बैक आपके फादर ने शुरू किया था और अब क्या रामरतन ग्रुप में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल व्हिच रामरतन ग्रुप हैज प्लेड? सेफ्टी फॉर फंड्स, वैल्यू फॉर मनी। सेफ्टी ऑफ फंड्स एंड वैल्यू फॉर मनी, आई थिंक ये सब चाहते हैं दैट एवरीबॉडी वांट्स क्लैरिटी। देखिए क्लैरिटी व्हेन इट कम टू टाइटल, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं लॉ फर्म्स के साथ काफी बिजनेस करता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ हर फील्ड का एक अपना आदमी होता है। देखिए रेवेन्यू हमारे यहाँ जानना बहुत जरूरी है, जिस टाइटल की आप बात कर रहे हैं, पीछे बिल्डर्स आप फ्लैट भी लेते हैं तो उसका भी रेवेन्यू जानना बहुत जरूरी होता है। मेरा मानना यह है कि जो सेफ्टी फॉर फंड्स आती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, डॉक्यूमेंट्स हम कोशिश ये रहती है, कमिटमेंट ये रहती है, प्रॉमिस ये रहता है कि हम हमारे कस्टमर को अगर जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो आने वाले सालों तक किसी भी तरह का उसको लीगल प्रॉब्लम ना है, कोई हरासमेंट ना हो। ये वैल्यू फॉर मनी भी है, ये सेफ्टी फॉर फंड्स है।
अल्टीमेटली विजय चौधरी हो ना हो, रामरतन ग्रुप हो ना हो, संस्थाएं बनी रहनी है, पर जिस कस्टमर ने, इंडिविजुअल कस्टमर ने हमसे एक फार्म लिया या प्रोडक्ट लिया, अगर आज उसके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचेगा तो वो अपने बच्चों को क्या विरासत देगा, वो क्या प्रॉफिट लेगा। तो ये हमारी जवाबदेही बनती है, ये रामरतन ग्रुप की यूएसपी रही है। मैं ओपन मंच से आपके सामने कह रहा हूं, हमारे डॉक्यूमेंट में कोई आदमी कमी निकाले, हम अपने डॉक्यूमेंट को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं कि जैसे उसका पैसा नहीं हमारा पैसा है। और इसी कारण से आज लोग रामरतन ग्रुप में विश्वास करते हैं। आपने युद्ध के लिए कहा, मैं कहता हूं बदलाव की मूवमेंट है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो किसी भी तरह का मंच हो। बदलाव की इंडस्ट्री में 25 टू 45 के उम्र के हमारे भाई साथ आ रहे हैं। देखिए, नई सोच है, नया विचार है, नया माध्यम है, बहुत फास्ट डिसीजन है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जो गलती पिछले 10-15 साल में किसी भी कारण से रियल एस्टेट में हुई या जो लोगों ने की, आज युद्ध उससे बदलाव में आया है, उसको समझ में आ गया है कि अच्छे लोगों से बिजनेस करो, महंगा लो बट सेफ लो, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो, टाइम ड्यूरेशन बनाओ। ये लोगों को समझ में आ गया, ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। एज अ इन्वेस्टर, एज अ डेवलपर एंड एज अ पर्सन टू बी इन द इंडस्ट्री, वी नीड टू बी क्लियर इट वेरी वेरी मच। हमने फार्म हाउसेस की बात करी, हम ये जानना चाहेंगे विजय जी दैट अदर देन फार्म हाउस और क्या इनिशिएटिव्स है रामरतन ग्रुप के? सॉरी, मैं आपके सुन नहीं पाया। हमने जाना कि रामरतन ग्रुप फार्म हाउसेस में डील करता है, टाउनशिप्स में डील करता है, और क्या इनिशिएटिव्स है रामरतन ग्रुप के फार्म हाउसेस और टाउनशिप्स को छोड़ के? देखिए, मुझे तो सिवाय काम की कुछ समझ में आता नहीं। मेरा तो मानना है कि मैं बड़ा सीधा व्यापारी हूँ, काम करें, आगे बढ़ें। और रामरतन ग्रुप फार्म कम्युनिटीज, लैंड इन्वेस्टमेंट, फ्यूचरिस्टिक लैंड इन्वेस्टमेंट्स और दीनदयाल टाउनशिप्स की तरफ मूव कर रहा है। देयर इज अ बिग नीड ऑफ लॉजिस्टिक्स टुडे। उसके लिए लैंड चाहिए, भारत सरकार लैंड दे नहीं रही, कोई भी सरकारें लैंड नहीं दे रही। तो आज की डेट में हमारा फोकस तो ये है, बट क्योंकि सोसाइटी में है, सोसाइटी के माध्यम से चलना होता है, तो हम लोग सीएसआर की तरफ काफ़ी मूव करते हैं। हमने अपने फादर साहब के नाम से चौधरी रामरतन फाउंडेशन बनाया, उसमें हमारे 7-8 लोग साथी हैं, ट्रस्टी हैं, मनोज जी हैं, निर्मल जी हैं, नीरा जी हैं, चारू जी हैं, भाई साहब हैं, सारे लोग हैं। काफ़ी लोगों को हमने उसमें जोड़ा और हम ये मानते हैं कि किसी भी तरह का व्यापारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, धार्मिकता की तरफ हमें जाना चाहिए। तो सीएसआर की तरफ हमारा काफ़ी फोकस है और हम लोगों ने अपने फादर साहब के नाम से रामरतन फाउंडेशन को चला रखा है। धीरे-धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि उस संस्था को आगे बढ़ाएँ, उस चीज़ से जितना भी हम लोग किसी का भला कर पाएँ, एक भली सोच दे पाएँ, एक उम्मीद दे पाएँ। देखिए, मैं गिफ्ट करने में बिलीव नहीं करता, बट मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ कि मैं किसी को काम दे सकूँ, मैं किसी को काम पे लगा सकूँ, वो उसके लिए परमानेंट गिफ्ट है। वन टाइम गिफ्ट में मैं बिलीव नहीं करता। भगवान किसी को काम दे, गिफ्ट ना दे, क्योंकि जो काम की राह पकड़ गया, वो जीवन भर कमाएगा। वन टाइम कमाने का और खाने का कोई यहाँ पे समाधान नहीं है साहब। क्या बात है। अच्छा, हम बात कर रहे थे फार्म हाउसेस लेंगे, फार्म हाउसेस समझिए कि ले लिया, उसके बाद क्या? आपको क्या लगता है, क्या तरीके हैं फार्म हाउस एंजॉय करने के? वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी टॉक अबाउट पेस्टिसाइड्स फ्री वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे, क्या तरीके हैं फार्म हाउस एंजॉय करने के? देखिए, फार्म हाउस एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कहीं भी बैठ के सुनिएगा, आदमी कहता है, चाहे वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाइए, मेरा दिल्ली में फार्म है या सराउंडिंग में फार्म है, तो उसकी थॉट बदल जाती है। मैं कुछ वर्ड्स को यहाँ पे यूज नहीं करना चाहूंगा, बट फार्म हाउस के नाम से आदमी को फीलिंग आती है कि यू आर समथिंग, ओ यू आर वेरी रिच, ओ यू हैव। अब इसकी डेफिनेशन बदली। डेफिनेशन कैसे बदली कि अब लोगों ने अपने आप को एक रिच लाइफ जो फार्म हाउस से जोड़ा जाता था, अब उस रिच लाइफ की डेफिनेशन बदली। लोगों ने कहा, विचार बनाया, देखा, समझा, हमने भी गाइड किया कि अच्छा खाना, अच्छी जगह रहना, अच्छी इन्वायरमेंट में रहना, अच्छी ऑक्सीजन लेना, जो आज की देखिए क्या हाल हो रखा है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रीज नहीं है, तो लोगों के अंदर बदलाव आया। ये सारी इंजॉयमेंट आप फार्म पे ही कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। दूसरी क्या है कि जो सर्विस अपार्टमेंट्स का मॉडल था, हमने धीरे-धीरे कम्युनिटीज बनाई, 100 एकड़ की कम्युनिटीज बना रहे। हम ये भी आपसे कह रहे हैं कि अगर आप आज एक फार्म बना रहे हो, आप उसमें ऑर्गेनिक नहीं कर रहे, तो हम आपके लिए ऑर्गेनिक कंपनीज अवेलेबल कराएं। अगर आपने घर बनाया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप उस घर को यूज नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट उस घर को रेंट पे ले लें, हम उसको कंपनीज को रेंट पे दे रहे हैं। तो धीरे-धीरे जो बदलाव आ रहा है, ये बदलाव सिर्फ फार्म हाउसेस का नहीं है,
ये इसको यूज करने का है, एंजॉय करने का है। ये समय है, ये वो समय है जहां पे हम बिलीव कर रहे हैं कि हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शन टू यूज द फार्म हाउस, मल्टीपल ऑप्शन, दिस नो लिमिट, यू कैन हैव मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल गाइडेंस, और सबसे अच्छी बात है एक ऐसी इन्वायरमेंट वहां पे मिलता है जहां पे आपको खुशी मिलती है। बिल्कुल मिलती है, and शायद सबका एक सपना होता है दैट लेंगे तो फार्म हाउस लेंगे, क्योंकि वो ग्रीनरी एनवायरनमेंट, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक एवरीबडी इज एट होम। उससे अच्छा क्या कि आपके घर पे आपका घर फार्म हाउस हो, जहाँ पे आपके आसपास सिर्फ ग्रीनरी हो, पॉजिटिव थॉट्स हो। एंड हेंस मैं जानना चाहूंगी, देवशीष हैड अ क्वेश्चन दैट आप रामरतन ग्रुप इको फ्रेंडली हाउसेस या आप बिल्डिंग जो वास्तु की बात करते हैं, क्या आप उसको भी केटर करते हैं? क्या उस चीज में भी असिस्टेंस होता है? देखिए, वास्तु को कैटर करना पड़ता है, बट हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जैसे हम माँ बाप की पूजा करते हैं, हम अपने हर कार्य की पूजा करते हैं, इसी तरह हम धरती माता की पूजा करते हैं। मैं आपके मंच पे एक चीज बताना चाहूंगा अपने यूथ को कि जमीन का आपके नाम होना, जमीन आपके नाम रजिस्टर्ड होना, आप किसी भी वास्तु शास्त्र से पूछ लीजिए, किसी भी धार्मिक मंच के लोगों से पूछ लीजिए, पंडित जी से पूछ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी आदमी के नाम जमीन होना, इससे शुभ कुछ वास्तु नहीं है। हाँ, हम लोग वास्तु को ध्यान में रखते हैं, वास्तु को ध्यान में रख के हम चीजों को बनाते हैं। हमारे पैनल पे काफी एक्सपर्ट्स हैं, बट मैं फिर एक बात आपसे कहना चाहूंगा ऋचा जी, बहुत दिनों से लोगों के अंदर ये भूल पड़ रही है कि जमीन या प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में, जैसे हम लोग फिर रिपीट करो माता पिता और अपने ग्रंथों की पूजा करते हैं, इसी तरह धरती माता की पूजा की जाती है। बिरले लोग हैं जिनके नाम से जमीनें हैं, और जिनके नाम से जमीनें हैं वो कभी फेल हो ही नहीं सकते। आप हिस्ट्री में कहीं भी चले जाइए, दिस इज अ फैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सही बात है। बिफोर वी एंड द शो, विजय जी, इतना अच्छा लगा आपकी बात सुनना, एंड आई एम श्योर जितने मेरे डाउट्स थे और जितने हमारे व्यूअर्स के डाउट्स थे कि हम लग्जरी बोलते हैं, लग्जरी आइटम है फार्म हाउस, लेकिन वो एक इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, शायद हमने उस नजरिए से देखा नहीं। जहां हम लैंड की बात करते हैं, जहां हम बैंकिंग ऑप्शंस की बात करते हैं, जहां पे आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंक्स बंद हो रहे हैं, कहाँ जाएगा इंसान जो सोचता है कि अब मैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख के इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब वो शायद क्लियर है कि इन्वेस्टिंग ऑप्शंस के लिए लैंड बहुत अच्छा है। And anybody who wish to contact him can type on Facebook, Instagram, Twitter or YouTube handle Ram Ratan Group, and it's very easily find. There are a lot of followers who are already following Ram Ratan Group. Before हम इस शो को एंड करें, हम चाहेंगे कि any last messages हमारे व्यूअर्स के लिए, नोइंग कि पैंडेमिक सिचुएशन है, नोइंग कि इतना इश्यूज है, नोइंग कि सब कुछ नेगेटिव है, एंड शायद ये इसी तरीके से हमने सोचा कि हम ग्रीन डायरी शुरू करते हैं। Before last message, I would also like to announce that I have been closely associated with the group by the group Ram Ratan Group, and I'm also proudly, and it's indeed honor to represent the group as a brand ambassador. मैंने शायद मैं ये माध्यम अपने शो के थ्रू बोलना चाहूंगी कि जब हम किसी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, जैसे कहा जाता है दैट ब्रांड एम्बेसडरशिप इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उस ग्रुप के फेस हैं, आपके बारे में लोग जानते हैं, एंड लोग आपकी बातें सुन के इन्वेस्ट भी करेंगे। It's a big decision, and when I was signing the papers almost 1.5 years back, I have done my due diligence, and hence my friends have also invested in the group, and they are doing good. We had a personal experience with the group, and my family friends have already invested and they have been doing good. They have been able to cope up with this. Thank you to Vijay ji for making me an integral part of this beautiful group, Ram Ratan Group, and I am honored to be the brand ambassador. ऋचा जी, आपने जितनी मधुरता से अपनी बात को रखा है, मैं ये कहूंगा कि ये आपकी परिभाषा रही है और आपके नाम की परिभाषा रही है। जहां तक राम रतन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात है, देखिए सौभाग्य है राम रतन ग्रुप का कि आप जैसे पॉजिटिव लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे, आज की सिचुएशन पे भगवान कभी बुरा नहीं करता, मैं नहीं मानता। जिसने जीवन दिया, मृत्यु अपने हाथ रखी है, वो बुरा नहीं कर सकता। बुरी परिस्थितियां बनी हुई है, कारण कोई भी हो सकता है, कारण मैं भी हो सकता हूँ। भगवान कभी बुरा नहीं करता, मेरा अपना मानना है। हर चीज
आने वाले कल के बेटरमेंट के लिए की जा रही है। भगवान ने मेरे ख्याल से यही सोचा है। दुख हमें भी है। अगर आज कोई हमारा जानकार, साथी, सहयोगी, संसार में कोई भी दुखी है, हम उस दुख के साथ हैं। क्योंकि दुख किसी का भी हो, हमें उस दुख के साथ रहना चाहिए। ये भारतीयों की एक पहचान रही है। पर शायद संसार में बदलाव की तरफ मूवमेंट चली है। लोगों का खाना, पीना, उठना, बैठना, एक जो सोच थी वो बदली है। लोग परिवार की तरफ मूव कर रहे हैं। लोगों ने संबंधों की मर्यादा को समझा है। लोगों ने ये भी समझा है कि महंगे, सस्ते, अच्छे, बुरा क्या है। लोगों ने रियल एस्टेट को समझा है कि रियल क्या है। लोग हमारे पास भी आए हैं, लोगों ने हमसे भी बातें की हैं। हर तरह की परिस्थिति को समझने का समय है। आज दुःख का समय है, हर घर में दुःख है, हमारे परिवारों में भी दुःख है। मैं ये कहूँगा दुःख का हम सब साथी हैं और दुःख में हम हर इंसान के साथ हैं। बट हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कैसा एनवायरनमेंट देना है, कैसा खान देना है, कैसा पैसा, कैसा पहनावा देना है, कैसा रहन-सहन देना है। ये हमारी रईसी है। मैं रईसी की डेफिनेशन बदलना चाहता हूँ। मैं रईसी को देखना चाहता हूँ। मैं ये देखता भी हूँ कि भई हमने जितना कम्फर्ट आज जो हो रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, चाहे कोई संपन्न है या कमज़ोर है या आम है या कोई भी है, कितना परेशान है। तो मेरे ख्याल से भगवान कुछ बदलाव चाह रहा है और ये बदलाव में एक जो सबसे अच्छी सोच मुझे आती है कि हम भारतीयों के अंदर फिर एक विचारधारा आ रही है कि हम अपनों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने संसार के प्रति, हम अपनी ज़िम्मेवारियों के प्रति झुकाव करें और संगठित होकर रहें। देखिए, हमारे इतिहास में ये कहा गया है, बुजुर्ग लोग कहते थे, आदमी खाली परेशान हो और भूखा हो, पर साथ हो तो दिन कट जाएगा। पैसे वाला हो और अकेला हो, आप बिलीव करिए, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। हमें कोविड-19 ने ये महसूस कराया है कि कोविड-19 नहीं है ये आपको बदलाव करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, जब भी प्रकृति किसी भी चीज़ का बदलाव की तरफ ले जाती है, उसमें हानि होती है। वो हानि किसी के साथ भी हो सकती है, किसी परिस्थिति भी हो सकती है, क्योंकि बिना कारण के तो कुछ नया होगा नहीं। बट मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ ऋचा जी, इस माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, हर इंसान से कहना चाहता हूँ, बदलाव की तरफ हैं। परमात्मा पे विश्वास करिए, कुछ नया सोचिए, प्रकृति की तरफ जाइए, अच्छी चीज़ों की तरफ जाइए, अच्छे लोगों की तरफ जुड़िए। देखिए, व्यापारी के साथ जुड़िए, चाहे रामरतन ग्रुप के साथ जुड़िए, चाहे किसी के साथ जुड़िए। व्यापारी कभी नुकसान नहीं देगा। आप व्यापारिता के साथ जुड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, फिर आप उस फील्ड को गलत कहेंगे, उस आदमी को गलत कहेंगे, रियल एस्टेट को गलत कहेंगे। नहीं, ये समझना पड़ेगा कि हमें खाना कहाँ है, रहना कहाँ है, करना कहाँ है और हमें किसके साथ पैसा लगाना है। मैंने शुरुआत में एक वर्ड कहा था, सेफ्टी फॉर फंड्स एंड वैल्यू फॉर मनी। ये 2 शब्द नहीं है जी, ये वो परिभाषा है जिसकी जवाबदेही निभाने के लिए विजय चौधरी एज अ चेयरमैन रामरतन ग्रुप 18, 14, 12 जितना घंटा काम करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि एक ही चीज की तरफ मैं देखता हूँ कि जिसने इन्वेस्ट किया है, जब वो मेरे से मिले या वो रामरतन ग्रुप के बारे में बात ना करें, मैं बिल्कुल कहता हूँ मेरी तारीफ ना करे बट मेरी बुराई ना करे, और उसको वो सेटिस्फेक्शन मिले कि वो फील करे। अच्छा, फार्म की बात करते हैं, मल्टीपल देखिए ना जी, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, पे सेफ्टी है, पेपर आपके नाम है, फिजिकल आपके पास है, घर बनाइए, रेंट पे दे दीजिए, ऑर्गेनिक करिए, साल 2 साल यूज करिए, अच्छी इन्वायरमेंट लीजिए। मैं काफी डॉक्टर्स के पैनल पे हूँ, तो डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं, यार विजय संसार बदल गया, सब ना एंटीबायोटिक की तरफ जा रहे हैं। मैं कहा जी क्यों? मैं भी लेता हूँ, सॉरी। कहता क्यों? कहता तत्काल हर आदमी को ठीक होना है। कह रहा है हम लोगों ने फार्म लिए हैं, उन्होंने हमसे राजस्थान में फार्म लिए। कहते हैं हम लोग यहाँ पे हफ्ते में आते हैं, 7 दिन में आते हैं। डॉक्टर बजाज है, काफी ऐसे डॉक्टर से मैं नाम उनका इसलिए ले रहा हूँ कि उन्होंने परमिशन दे रखी है नाम लेने के लिए, मैं प्रोटोकॉल में बिलीव करता हूँ। तो आप बिलीव करिए कि जब वो अपने सीट पे बैठते हैं तो लाइन लगी रहती है उनके पास, और जब वो फार्म पे जाते हैं वो उनका माली उनसे अच्छे कपड़े पहनता होगा, इतनी मेहनत वो करते हैं। तो कहते हैं हमें मेडिसिन नहीं चाहिए, हमें जिम में नहीं जाना, हमें तो यहाँ काम करना है, और ये काम हमें खूबसूरती देता है, एनर्जी देता है, पॉजिटिव थॉट देता है, अच्छा खाने को देता है जिसको सुपर लग्जरी कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात ये हमें पैसा भी देता है। बिकॉज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यू कैन टॉक अबाउट 1980s 90s until now, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, 80 to 85% लोगों ने जो इकोनॉमिक के अंदर पैसा अपना बनाया है वो रियल एस्टेट से बनाया है, और रियल एस्टेट में भी वो रिलेटेड प्रोडक्ट रिलेटेड टू लैंड बनाया है। जो अब कहीं भी बैठे हैं वो लैंड से ही जुड़े हुए थे।
हमारी पिछली की जनरेशन इससे हटी, वो नुकसान में गई, अब वो दोबारा जुड़ रही है। मैं तो धन्यवाद कहूंगा सबको, और कोविड-19 के दौर में संगठित होके इस लड़ाई को लड़ें, ये सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और भगवान से प्रे करूंगा कि सबके ही घर में सुख शांति रहे। इतनी सादगी से अपनी बात बोल देना शायद जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है वो ही कर सकता है. Thank you so much Vijay ji for joining us today in the episode 1 of this beautiful series The Green Diaries. We will be coming back with another episode and with a special guest about the Ramratan Group, knowing the Ramratan Group better. शायद हम सबके जो इतने भी सवाल थे कुछ के आंसर्स हमें मिल चुके हैं. क्लैरिटी हो चुकी है कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है. हम यूथ की बात करते हैं, बैंकिंग ऑप्शंस की बात करते हैं, हम कहते हैं वहाँ इन्वेस्ट करना है, वहाँ इन्वेस्ट करना है, बट लैंड में इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, that's what the change is all about. Thank you so much Vijay ji for joining us today. It was indeed an honor to have you on the Green Diaries. Over to the production team for the video. Imagine investing in real estate and removing any gamble from it. 33 years ago, we told our investors to have faith in us and invest into farmland in the distant village on the far edge of South Delhi. At the Ramratan Group, we thank our initial investors for listening to our advice. Today, those dust-laden villages are a part of prime South Delhi real estate. These are the farmhouses of Chhatarpur. For 33 years, the Ramratan Group has worked to help you find the next big thing before it starts. Land investments typically in India come with a lot of issues. Anybody who's looking at investing with Ramratan Group, they have a solid partner. The paper work is absolutely nailed out. That got me convinced to invest in Ramratan Group. In a little over 3 decades, we at the Ramratan Group have helped 2,000 families find a safe home for their investments. Those that invested with us in the 80s still choose us for their strategic land investments. When I met Vijay, a lot of my apprehensions dissolved. I found him to be scrupulously honest, and I found him to adhere to his words completely. Some of our most successful projects in Delhi, Gurgaon and Sona Road have given high returns to our investors. New opportunities are still available at these sites, and we are helping our investors find the next strategic and safe investments. The who's who of Delhi have already started investing in our Rose Valley Farms project, a few minutes away from the Golf Course Road in Gurgaon, and minutes away from Chhatarpur. Even while the area is being developed by us, the homes being made here showcase the best of farmhouse living. इन द फ्यूचर मेरे को लगता है उससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरी नहीं होगी लाइफ में.
तो मेरे को अपना यानी कि मेरे को ये अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट लगता है जो मैं अपना बना रहा हूँ वहाँ पे फार्म हाउस 2 एकड़ में. Another of the investments takes you into future growth areas. Fueled by India's infrastructure growth and located on the sidelines of the world's largest investment project, the upcoming Delhi-Mumbai Industrial Corridor. As a part of Greenwood Acres, a gated, freehold farmhouse community gives you investment options starting from an acre as a part of a 1,000-acre development. Close by is our project Leaf Song, brought to you by the Dua Ram Ratan Group. Leaf Song is surrounded by the Aravalis and located in the center of DMIC. The most important thing in today's era is they provide end-to-end service. I interacted with Vijay quite often. I never seen such a human being in a real estate industry. Green Wind Farms on Sona Road, spread over 100 acres, is an interesting residential investment opportunity by the Dua Ram Ratan Group. This South Gurgaon property gives you the option of investing in mini farmhouses to 1-acre farmhouses. From 2005 to 2012, there had been the surge in the market, despite the fact that there had been economy downtrend, but we hardly find any impact on these investments. I think they are extremely proactive, they are extremely responsive. Whenever a query is raised, they are very prompt in even listening to any kind of suggestions which we may have. For any land-related investments into real estate, you can find the perfect partner with the Ram Ratan Group. Over 2,000 families have already partnered with us in finding a secure home for their investments.